آپ اس شخص کو کیا جواب دیں گے جو یہ اعتراض کرے کہ آپ کے پیغمبر نے بائبل کے عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید سے معلومات چرا کر قرآن بنا دیا ہے؟ کیا شریعت واقعی ہی ایسی چیز ہے جیسا اس سے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں؟ اگر ایسا نہیں تو بتائیے شریعت کیا ہے؟ کیونکہ میں واقعی مسلمان نہیں ہونا چاہتا تھا، میں سچ مچ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تمام دلائل، تمام حقائق دیکھنے کے بعد بھی میں اسلام قبول نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن آخرکار میں مسلمان ہو ہی گیا۔ جب میں اس آیت کو دیکھتا ہوں تو میں اسے ہمیشہ بہت سی سچائیوں پر مشتمل کتاب سمجھتا ہوں، لیکن مکمل سچائی نہیں۔ کچھ لوگوں نے مجھ سے سوال کیا، آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کی جماعت کو کیوں چھوڑ دیا؟ تو میں نے کہا، در حقیقت میں نے عیسیٰ علیہ السلام کی جماعت کو نہیں چھوڑا، عیسیٰ علیہ السلام تو ہماری جماعت بھی ہے۔ السلام علیکم بھائی جورم، ہماری دوبارہ دعوت قبول کرنے پر بہت شکریہ۔ آپ کا پہلا انٹرویو بہت وائرل ہوا، جس کے ویوز اس وقت 4 ملین تک پہنچ چکے ہیں۔ کیا آپ کو لوگوں سے اتنی دلچسپی کی توقع تھی یا آپ کو اس سے حیرت ہوئی؟ جی ہاں، مجھے حیرت ہوئی۔ مجھے ہرگز توقع نہیں تھی کہ یہ اتنا وائرل ہو جائے گا، اور 4 ملین ویوز یقیناً ایک بڑی تعداد ہے۔ الحمدللہ، یہ میرے خیال میں ایک بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اس سے اسلام کا پیغام پھیلا۔ اس بات کی کچھ وضاحت ہو گئی کہ میں کیوں مسلمان ہوا، اور خاص طور پر اسلام کی بنیادی باتیں لوگوں تک پہنچی۔ یقیناً میں ایک عالم نہیں ہوں، لیکن اس انٹرویو سے لوگوں کو مدد ملی۔ کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اس پر آپ کو لوگوں سے کیا ری ایکشن ملا، چاہے اچھے ہو یا برے، اور کون سا تاثر آپ کے لیے زیادہ دلچسپ تھا؟ جی ہاں، 1 درجن کے قریب لوگ وہ تھے جنہوں نے بتایا کہ در حقیقت یہ انٹرویو ہمارے لیے آخری دھکا ثابت ہوا ہے، یعنی انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ جی ہاں، کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، صرف انٹرویو کی وجہ سے ہی نہیں، لیکن اس انٹرویو سے انہیں مدد ملی، کیونکہ انہوں نے خود بتایا کہ یہ آخری دھکا ثابت ہوا۔ یہ میرے خیال میں قابل ذکر بات ہے، اور یقیناً کچھ برے تاثرات بھی تھے، لیکن میرے خیال میں یہ معمولی بات ہے۔ لیکن سب سے قابل ذکر تاثر ایک ایسے شخص کی طرف سے آیا جو بدھ مت کا پیروکار تھا۔ یہ بہت مضحکہ خیز بات ہے۔ اس نے مجھے بتایا، میں نے کبھی مذہب پر غور نہیں کیا تھا، اور یہ کہ میں بدھسٹ تھا، اور جب آپ بدھ مت کے بنیادی تصورات کو دیکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ایک طرح سے اللہ کا انکار بھی شامل ہے، کیونکہ بدھ مت کا مقصد نروان کا حصول ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک طرح سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس نے مزید بتایا، میں نے ہمیشہ بدھ مت کو روحانی ایتھیزم پایا ہے۔ بالکل یہی الفاظ اس نے استعمال کیے تھے۔ مزید کہا کہ یہ پہلا موقع تھا جب میں نے سوچا شاید ایک اور وجود بھی ہے، شاید کوئی خالق کائنات بھی ہے، اور وہ اس کی تلاش میں تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے ایک ہے جنہوں نے آخرکار کلمہ پڑھ لیا۔ تو یہ سب کچھ ایک ایسے شخص سے سننا مضحکہ خیز ہے جو بہت بڑا ڈچ متشکک اور بہت بڑا سیکولر تھا، اور عیسائی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا تھا، جبکہ دوسرا ایک بدھسٹ شخص تھا جو نیدرلینڈ میں مسلمان ہوا۔ سچ میں؟ اب میں کچھ سوالات پوچھوں گا جو اکثر غیر مسلم پوچھتے ہیں۔ آپ اس شخص کو کیا جواب دیں گے جو یہ اعتراض کرے کہ آپ کے پیغمبر نے بائبل کے عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید سے معلومات چرا کر قرآن بنا دیا ہے؟ بالکل نہیں، یہ ناممکن ہے۔ یقیناً میں نے بھی اس بات پر کافی غور کیا تھا، خاص طور پر جس دور میں میں اسلام پر تنقید کیا کرتا تھا۔ لیکن جب آپ قرآن پر غور کرتے ہیں کہ کس طرح اس کو ترغیب دیا گیا ہے، تو کسی انسان کے لیے ایسا کرنا تقریباً ناممکن ہے، خاص طور پر اس زمانے میں جب آپ کے پاس کمپیوٹر نہیں تھا کہ آپ اس بات کو یقینی بنا سکیں کہ وہ اتنا جامع ہو۔ قرآن میں بہت زیادہ جامعیت ہے، چاہے لوگ اس کو مانیں یا نہ مانیں۔ یہاں تک کہ مغربی روایت بلکہ مشرقی روایت کے بھی بہت سے متشکک لوگ، میں مسلمان ممالک کی بات نہیں کر رہا، وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ ایک حیرت انگیز کتاب ہے۔ تو کسی ایسے شخص کے لیے جس کے پاس کمپیوٹر نہیں تھا، جو باقاعدہ پڑھا لکھا نہیں تھا، ایسا کچھ بنانا ناممکن ہے۔ اگر اس نے ایسا کیا بھی ہو تو یہ خود اپنے آپ میں ایک معجزہ ہوگا۔ لیکن جب بات ان لوگوں کی ہو جو کہتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کی چیزیں چوری کی، تو بھائی مثال کے طور پر عہد نامہ جدید تو اس وقت موجود ہی نہیں تھا۔ عرب کے پاس کوئی عہد نامہ جدید نہیں تھا، اس وقت تک اس کا عربی میں ترجمہ بھی نہیں ہوا تھا۔ اور اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی امی تھے تو اس بارے میں کیسے جان سکتے تھے؟ اور یوں ہی یہ بات کہ شاید 2 یا 3 لوگ تھے جو انہیں عیسائیت کے بارے میں کچھ واقعات سناتے۔ قرآن میں تو عیسائیت کے متعلق عقیدے کی بہت گہری بحثیں موجود ہیں، تو ایسی بات ممکن ہی نہیں، کیونکہ اس وقت کوئی عہد نامہ جدید نہیں تھا، لہٰذا وہ اس سے بالکل بھی چوری نہیں کر سکتے تھے۔ یہ بلا شبہ ناممکن تھا۔ میں ہمیشہ غور کرتا ہوں، جب میں عیسائیت کو دیکھتا ہوں تو میں اسے بہت سی سچائیوں پر مشتمل کتاب سمجھتا ہوں، لیکن مکمل سچائی نہیں۔
मिसाल के तौर पर जब मैं ओहदनामा कदीम, ओहदनामा जदीद और कुरान पर गौर करता हूँ और मैं कुरान को इसके साथ रखता हूँ तो ये एक पहेली की तरह है। तो जहाँ मुझे ओहदनामा कदीम और ओहदनामा जदीद में कुछ मालूमात नाकिस मालूम होती हैं या वो तब्दील शुदा होती हैं, बस जब इस्लाम कुरान लेकर आया तो कुरान ने पहली 2 कुतुब की तस्सीह कर दी। यूं इसने मेरा मजहब मुकम्मल कर दिया और यकीनन ये बात खुद कुरान में है, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। फिर जब आप इसे मजहबी नुक्ता नजर से देखते हैं, चाहे ईसाई नुक्ता नजर से ही हो, एक साबिक ईसाई होने के नाते मुझे लगता है कि इस बात की काफी अहमियत है, यानी ये सच है और ईसा अलैहिस्सलाम को ईसाईयत में बिलाशुबा बुनियादी हैसियत हासिल है। वो ईसाईयत की मरकजी शख्सियत है। इसका ये मतलब नहीं कि इस्लाम में उनका कोई तस्वुर नहीं, क्योंकि कुछ लोग मुझसे पूछते हैं आपने ईसा अलैहिस्सलाम की जमात को क्यों छोड़ दिया। ये वाकई एक अहम सवाल है और मैंने उनसे कहा मैंने बिल्कुल भी ईसा अलैहिस्सलाम के ग्रोह को नहीं छोड़ा, ईसा अलैहिस्सलाम हमारे ग्रोह में भी हैं। लेकिन बहुत से ईसाइयों के लिए ये तस्लीम करना बहुत मुश्किल है कि ईसा अलैहिस्सलाम के बाद कोई और नबी भी थे, और अगर वो इसे तस्लीम कर लें तो उनका मुसलमान होना बहुत आसान हो जाता है। ईसाई शरीयत के मुतालिक भी हैरान और परेशान होते हैं। आम तौर पर वो इसे सिर्फ कुछ सख्त सज़ाओं पर मुश्तमिल समझते हैं, जैसा कि मीडिया में दिखाया जाता है। क्या शरीयत वाकई ही ऐसी चीज़ है जैसा उससे बहुत से लोग समझते हैं? अगर ऐसा नहीं तो बताइए शरीयत क्या है? अगरचे मैं एक आलिम नहीं हूँ लेकिन जो कुछ मैं जानता हूँ और जितना मैंने शरीयत के मुतालिक पढ़ा है, उलमा ये कहते हैं ये मजहबी जिम्मेदारियों पर मुश्तमिल नजरिया है और शरीयत बहुत वसी है। शरीयत का ताल्लुक लिबास से भी है, इसका ताल्लुक खाने से भी है, इसका ताल्लुक इबादत से भी है, इसका ताल्लुक तजारत से भी है, इसका ताल्लुक हर मामले से है और बिलाशुबा इसका एक छोटा सा हिस्सा मुजरिमों की सजाओं से मुतल्लिक भी है। लेकिन मगरिब में फैली इसके मुतालिक गलत फहमी के पीछे 16वीं और 17वीं सदी के पुराने प्रोपोगंडे हैं, जिसके मुतालिक हमने पहले भी बात की थी। लेकिन अब भी लोग ये कहते रहते हैं कि शरीयत ये है वो है। शरीयत इसका नाम नहीं, ये तो उसका बहुत छोटा सा हिस्सा है। लेकिन चूंकि इस्लाम एक जामे दीन है, लिहाजा ये सिर्फ दिलों की बातें नहीं करता है, ये एक प्रैक्टिकल मजहब है। ये हकीकत में इस दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए काबिल अमल है। इसका मतलब ये है कि हमें शरीयत में इस दुनिया के तमाम पहलुओं और तमाम हिस्सों के बारे में बात करनी पड़ती है और मुजरिमों की सजा भी इसका एक हिस्सा है। मगरिब में बहुत से लोग मुझसे कहते हैं हमारे यहाँ लोगों को वाकई सजा नहीं दी जाती। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ ऐसा भी हुआ है कि कुछ लोगों ने रेप किया और उन्हें सिर्फ 1 साल कैद की सजा मिली, सिर्फ 1 साल। और मैं खुद भी एक बाप की हैसियत से महसूस कर सकता हूँ, अगर मेरी बेटी का रेप हो तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि ऐसे शख्स को सिर्फ 1 साल की सजा दी जाए। मैं एक सख्त और हकीकी सजा का मुतालबा करूंगा। और जब मैं दूसरे निजामों की तरफ देखता हूँ तो जाहिर है इससे सख्त सजाएं हैं, लेकिन बार बार यही ताकीद करूंगा कि शरीयत का ताल्लुक सिर्फ सजाओं से ही नहीं है। और आपके यहाँ शुबहात का तस्वुर है कि किसी शख्स को इस तरह सजा देने से पहले बहुत सारे अवामिल हैं, बहुत सारी पाबंदियां हैं कि ये सजा तकरीबन नामुमकिन हो जाती है। यूं ज्यादातर इस बात को यकीनी बनाना होता है कि लोग समझ जाएं कि एक काबिल नफरत काम है जो आप करने वाले हैं या कर चुके हैं। लेकिन मगरिब में लोग इसे इस तरह नहीं देखते, क्योंकि वो इस्लाम को इस तरह देखना ही नहीं चाहते जैसा वो है। खास तौर पर वो लोग जो इस्लाम को मुकम्मल तौर पर जानते हैं मगर वो मुसलमान नहीं होना चाहते, तो वो इस किस्म की बातों को तोड़ मोड़ कर बहुत ही खौफनाक और अजीब बनाकर पेश करते हैं। लेकिन जब आप सल्तनत उस्मानिया को देखते हैं, मिसाल के तौर पर मुर्तद की सजा का मसला, क्योंकि बहुत से लोग इस पर सवाल करते हैं, है ना, जब आप मुर्तद होते हैं तो आपको कत्ल कर दिया जाता है वगैरह। जब आप इसका मवाजना करते हैं मसलन अमेरिका से, रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका बनने से पहले बहुत से लोग ऐसे थे जो कत्ल कर दिए गए क्योंकि उन्होंने अपना मजहब ईसाई छोड़ दिया, क्योंकि वहां की कलीसा या वहां की रियासत ने कहा आप हकीकी ईसाई नहीं हैं या हमें शक है। यूरोप को देखें, उन्होंने भी बहुत से लोगों को कत्ल किया, लाखों लोगों को। और जब आप इसका मवाजना मसलन सल्तनत उस्मानिया से करते हैं तो सल्तनत उस्मानिया के आखिरी 400 सालों में सिर्फ 3 लोगों को ये सजा दी गई, सिर्फ 3। और जब आप इसका मवाजना मगरिब के साथ करते हैं जहां लाखों लोगों को, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि इस्लाम एक खौफनाक मजहब है और मुसलमान सबको मार देते हैं और मगरिब तो बहुत अच्छा है। नहीं, ये असल मामला नहीं है, ये हकीकत पर मबनी बात नहीं है, ये तारीखी लिहाज से दुरुस्त नहीं, ये सब कुछ प्रोपोगंडे की वजह से है, लिहाजा। लेकिन ये एक अलग मौजू है। लोग ये भी पूछते हैं कि हमें इंसाफ कायम करने के लिए अल्लाह ताला से अहकामात लेने की क्या ज़रूरत? क्या हम खुद फैसला नहीं कर सकते कि क्या सही है और क्या गलत? अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों, हमें एहसास हुआ है कि हमारे चैनल पर 80% नाजरीन बशमूल इस वीडियो के हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम गैर मुनाफे बख्श तंजीम हैं और हमारी वीडियो पर इश्तहारात गैर फ़ाल हैं। टुवर्ड्स इटर्निटी सिर्फ एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि एक मदरसा भी है। यहाँ हम खुद को और नौजवानों को इस्लामी तालीम से आरास्ता करते हैं, लिहाजा हमारे इस मुतालबे का वाहिद मकसद सच्चाई को फैलाना है। हो सकता है बज़ाहिर ये छोटा अमल लगे, लेकिन इंशाअल्लाह ये हमें लाखों लोगों तक पहुँचने में मदद करेगा।
आइए अब लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ मिलकर टुवर्ड्स इटर्निटी का सफ़र करें। लोग ये भी पूछते हैं कि हमें इंसाफ कायम करने के लिए अल्लाह ताला से अहकामात लेने की क्या ज़रूरत? क्या हम खुद फैसला नहीं कर सकते कि क्या सही है और क्या गलत? ये तो एक फलसफाना किस्म का सवाल है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि लोग ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि लोग बदलते रहते हैं। और जब आप तारीख को देखते हैं, और जैसा कि मेरा ताल्लुक मगरिब से है और मैं मगरिब में रहता हूँ, जब मैं मगरिब की तारीख देखता हूँ, जब लोगों ने ऐसा सोचा कि वो एक खुदा यानी अल्लाह ताला के बगैर भी काम चला सकते हैं, इस कोशिश का नतीजा बहुत बुरा निकला। मिसाल के तौर पर जब आप DDR यानी मशरकी जर्मनी को देखें, या जब आप सोवियत यूनियन रूस को देखते हैं, वहाँ कम्युनिज्म राज था और कम्युनिज्म में रियासत का मजहब एथीज्म था और बहुत से उलमा कराम को वहाँ कत्ल कर दिया गया सिर्फ इस वजह से कि वो मुसलमान थे और वो इस्लाम और सिर्फ अल्लाह पर ईमान लाने की तबलीग कर रहे थे। उन्हें बुरी तरह कत्ल किया गया, ज़िबा किया गया, बल्कि ईसाई राहबों को भी बहुत सारे लोग यूं मार दिए गए। तो अगर लोग ये कहते हैं कि जी मजहब हमेशा तशद्दुद का सबब बनता है, तो भाई सोवियत यूनियन को देखो, वो तो खुलकर मजहब का इनकार करते थे, लेकिन उन्होंने खौफनाक जराइम का irtikab किया। अपने ही मुल्क के 20 मिलियन के करीब लोग कत्ल कर दिए, दूसरे लोगों की तो बात ही ना करें। यहाँ तक कि अल्बानिया में भी, जो कि एक मुसलमान मुल्क हुआ करता था, जब वो कम्युनिस्ट अनवर खोजा के ज़ेरे हुकूमत था, उसने बहुत से लोगों को कत्ल किया। यूं ही चाइना, नॉर्थ कोरिया में बहुत सी ऐसी मिसालें मौजूद हैं। हाँ, बाज़ औक़ात खुशकिस्मती से हालात बदल जाते हैं, लेकिन जब आप इस तसव्वुर को देखते हैं कि लोग खुदा के अहकाम के बगैर खुद ही अपने ऊपर हुक्मरानी करें, तो इसका नतीजा अच्छा नहीं निकलता। खैर, जब आप जंग अज़ीम दोम को देखते हैं, जब आप 1939 से 1945 तक नाज़ी जर्मनी को देखते हैं, उसने अमली तौर पर बरे आज़म यूरोप पर हुक्मरानी की, लेकिन उसने कितने ही लोगों को मार डाला, यहाँ तक कि माजूर अफराद को भी इंतहाई दर्दनाक तरीकों से कत्ल कर दिया। उन्होंने अपने खुद साख्ता उसूल बनाए। ये बात वहाँ लोगों के लिए अच्छी साबित ना हुई, तो इंसानों के लिए ऐसी रहनुमाई जिससे हम एक दूसरे के साथ अमन से रह सकें, अल्लाह ताला के अहकाम में ही है। मगरिब में बहुत से गैर मुस्लिम ये सोचते हैं कि इस्लाम में आज़ादी नहीं है, जैसा कि हम जानते हैं कि वो लोग खुद आज़ाद ज़िंदगी गुजारने में मशहूर हैं। क्या आपको लगता है कि इससे इंसानियत को खुशी मिल सकती है? मैं समझता हूँ कि इस्लाम में आज़ादी है, लेकिन कोई शख्स भी मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं है। आप हमेशा किसी न किसी चीज़ के गुलाम होते हैं, पैसे के गुलाम, या औरतों के गुलाम, या अच्छे कपड़ों के गुलाम, या किसी दूसरी चीज़ के गुलाम। लिहाजा हमें चाहिए कि कम से कम सच्चाई के गुलाम बने। तो हकीकी आज़ादी आज़ादी है क्या? ये क्या आप नशा कर सकते हैं, या ये क्या आप मनशियात इस्तेमाल कर सकते हैं, या ये क्या आप जिना वगैरह कर सकते हैं? ये हकीकी आज़ादी नहीं है, अंजामकार। इसमें आपको कोई खुशी हासिल नहीं होगी। तो ये ऐसे ही है जैसे छोटे बच्चों के साथ होता है। अगर मैं अपने बच्चे से पूछूं कि तुम क्या खाना चाहते हो, वो कहेगा टॉफी। अगर मैं उसे सारा दिन टॉफियां देता रहूं तो वो बीमार पड़ जाएगा और नतीजे के तौर पर शायद वो मर भी जाए, क्योंकि उसे विटामिन नहीं मिल रहे, सब्जियां या प्रोटीन्स वगैरह नहीं मिल रही। मतलब ये कि अगर कोई चीज अच्छी लगती है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो वाकई ही अच्छी है, और ये जरूरी नहीं कि वो आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद ही साबित हो। तो अगर आप मुसलमान हैं तो बस इस्लाम पर अमल करने की कोशिश करें। और मैं जानता हूं कि बहुत से लोग कहते हैं जब आप मुसलमान होते हैं तो आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। आप तकरीबन सब कुछ कर सकते हैं सिवाय चंद चीजों के, और कुछ चीजें जिनकी आपको इजाजत नहीं है। तो इसकी वजह आप ही की बेहतरी है। वो जो कहा जाता है कि शराब ना पिए, मनशियात का इस्तेमाल ना करें, ऐसा ना करें, इसकी एक वजह है। ये हुक्म आपको परेशान या खराब करने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपकी मदद के लिए है। इस बात को यकीनी बनाने के लिए है कि आप एक खुश इंसान बने। अगर आप मुसलमान हैं या अगर आप मुसलमान नहीं भी हैं, अगर आप मुसलसल मनशियात इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप शराब वगैरह पी रहे हैं, या आप किसी के साथ डेट पर, क्लबिंग वगैरह पर जा रहे हैं, उनमें से अक्सर लोग बाद में पछताते हैं, फिर वो अकेले रह जाते हैं, क्योंकि आखिरकार वो एक मर्द या औरत की तलाश कर रहे होते हैं ताकि शादी हो जाए, बच्चे हो जाएं। ज्यादातर लोग यही चाहते हैं। लेकिन ये सब चीजें आपके ऐसे मुस्तकिल ताल्लुकात पैदा करने में मदद नहीं करेंगी जहां बुनियादी नुक्ता खुशी का हसूल हो। क्योंकि आखिर में मेरा ख्याल है कि हम सब सादत वाले बनना चाहते हैं, है ना? आप खुश रहना चाहते हैं, आप अल्लाह ताला के करीब होना चाहते हैं। वह जरिया जो आपको इस मुकाम तक पहुंचाएगा वो इस्लाम है। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को इस बात पर नजरसानी करनी चाहिए कि हकीकी आज़ादी क्या है। दर हकीकत माजी में बहुत सारे ऐसे पॉप स्टार्स थे जो बहुत अमीर थे, उनके पास बहुत सारे खूबसूरत मर्द या खूबसूरत औरतें थीं,
तो उन्होंने मनशियात का इस्तेमाल किया, उन्होंने शराब का इस्तेमाल किया, उन्होंने उनमें से बहुत से लोगों ने खुदकुशी कर ली। इसलिए नहीं कि ये सब चीजें उन्हें खुशी दे रही थी, वरना वो कभी ऐसा ना करते। यकीनन ऐसा सबके साथ नहीं होता, लेकिन उन लोगों के पास किसी चीज की कमी ना थी। और बहुत से लोग यही सोचते हैं, अगर मुझे बेहद आजादी मिल जाए तो मैं ये करूंगा वो करूंगा। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकेंगे, और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका खात्मा भी ऐसे नहीं होगा जैसे आप चाहते हैं। तो इस्लाम एक मतवाजन निज़ाम है और यह आपको तकरीबन सब कुछ करने की इजाजत देता है, सिवाय उन चीजों के जो अंजाम के एतबार से आपको परेशान कर देती हैं। तो बस दी गई हदायत पर अमल करें ताकि आप एक खुश इंसान बन सके, और इन हदायत से मेरी मुराद इस्लाम है। आखिर में मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि 4 मिलियन से ज्यादा अफराद ने YouTube पर हमारे साथ आपकी पहली वीडियो देखी और तकरीबन इतने ही लोगों ने उसको Instagram पर देखा। उन देखने वालों में हजारों गैर मुस्लिम भी थे। मैं चाहता हूं कि आप बराह रास्त कैमरे की तरफ देखें और इन गैर मुस्लिमों से चंद अल्फाज कहें। इस्लाम कबूल करने में उन्हें कुछ हिचकचाहट हो सकती है। आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? मुख्तसर अल्फाज में बराए मेहरबानी, इस्लाम ही क्यों? उन्हें क्यों नहीं हिचकचाना चाहिए सीधा कैमरे की तरफ देखते हुए? उन तमाम लोगों के लिए जो अभी तक मुसलमान नहीं हुए, आप तरद्दुद का शिकार हैं, चाहे आप मुतशक्किक हों या एथियस्ट या ईसाई या बुद्धिस्ट या हिंदू वगैरह कुछ भी हों। मैं ऐसे तमाम लोगों के लिए दीन इस्लाम कबूल कर लेने की ख्वाहिश रखता हूँ। ये इसलिए नहीं है कि मैं समझता हूँ कि आप बुरे शख्स हैं, और ऐसा ही मामला ज्यादातर मुसलमानों का है। बाकी मुसलमान भी जब आप तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाते हैं, वो भी आपको बुरा इंसान नहीं समझते। लेकिन जैसा कि मैंने इंटरव्यू के दौरान कहा था, इस्लाम ने दर हकीकत मुझे दिली और ज़हनी सुकून दिया है। और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मुसलमान होना बहुत मुश्किल है, मुझे 5 बार नमाज पढ़नी पड़ेगी, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। मेरा तजर्बा ये बताता है कि ये इतना मुश्किल नहीं है। नतीजे के एतबार से इसने मुझे और ज्यादा खुशी दी है। और अगर आप वाकई मुखलिस हैं, और अगर आप वाकई सच्चाई के पैरोकार हैं, और अगर आप वाकई सच्चाई पर यकीन रखते हैं, तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। लिहाजा मैं लोगों को ये मशवरा और तजवीज़ दूंगा कि इस्लाम पर गौर करें, इसका हकीकत पसंदी से मुतालिया करें। ये मत देखें कि मुसलमान क्या करते हैं, ये देखें हदायत के आखिरी सरचश्मे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अमल किया है, और उन्हें आपको इस्लाम की सच्चाई का कायल करने का मौका दें। तो इस्लाम कैसे दुनिया भर के लोगों के दिलों को फतह कर सकता है? आपके ख्याल में ऐसा करने का क्या तरीका है? इस्लाम एक हकीकी सच्चाई है। मुझे नहीं लगता कि हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। हमारे ज़िम्मे सिर्फ पैगाम पहुंचाना है, और मैं हमेशा यही समझता हूँ। हम यहाँ भी यही करते हैं, और आने वाले इस्लामिक म्यूजियम में भी ऐसा ही करेंगे, क्योंकि सच्चाई लोगों को मतवज्जे करती है। अगर कोई चीज सच है तो आप इस सच्चाई की तरफ रागिब हो जाते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ, क्योंकि मैं वाकई मुसलमान नहीं होना चाहता था। मैं सचमुच ऐसा नहीं करना चाहता था। तमाम दलाइल, तमाम हकाइक देखने के बाद भी मैं इस्लाम कबूल नहीं करना चाहता था, लेकिन आखिरकार मैं मुसलमान हो ही गया। आप क्यों नहीं होना चाहते थे? ये ऐसा था कि जैसा कि मैंने शुरू में बताया, जब कुरान अलमारी से गिर गया तो मैंने इसे उठाया और इसमें सूरह 22 अल हज की आयत नंबर 46 में लिखा था, बिलाशुबा उनकी आंखें अंधी नहीं होती, बल्कि सीनों में दिल हैं जो अंधे होते हैं। और यही मसला दर हकीकत मेरे साथ था। मैं समझता हूँ कि यही मसला मगरिब में बहुत से लोगों के साथ है, क्योंकि आंखों का मसला नहीं है। आप दलाइल देख सकते हैं, अगर आप वाकई दलाइल देखना चाहते हैं, अगर आप हकाइक देखना चाहते हैं तो उन्हें देखें, वो आपके सामने मौजूद हैं। तो आपकी आंखों के साथ कोई मसला नहीं है, आपकी आंखें दुरुस्त हैं, लेकिन आप देखना नहीं चाहते हैं, और ये मामला कुछ और है। ये दिल का मसला है, और इसकी वजह ये हो सकती है कि आप इस हकीकत को कबूल नहीं करना चाहते कि खालिक सिर्फ एक है, या आप मुसलमान नहीं होना चाहते। बहुत से दलाइल हैं, लेकिन ये दिमाग का मसला नहीं है, ये नहीं है। अकली तौर पर इस्लाम बहुत आसान है। मसला ये है कि क्या आप वाकई तैयार हैं, क्या आप वाकई पैगाम वसूल करना चाहते हैं। तो ये दिल का मसला है। आजकल कुछ लोग ये गुमान करते हैं कि मुसलमान शिकस्त खुर्दा हैं और पीछे रह गए हैं। अगर इस्लाम सच्चा दीन है तो ऐसा क्यों है? अगर आप इस्लाम को ऐसे दिखें कि मसलन वो सूरज की तरह है जो खूबसूरत है और ऊपर चमक रहा है, आप उसे छू नहीं सकते। और अगर हम बहसियत मुसलमान तय खाने में रह रहे हों और हम कहें इस्लाम कहाँ है, इस्लाम कहाँ है, हमें तो इस्लाम नजर नहीं आ रहा, तो इसकी वजह यह है कि हम तय खाने में हैं। हमें तय खाने से बाहर निकलना होगा। बाहर निकलें, ऊपर देखें, तो हम इस्लाम को देख सकेंगे। और यही दूसरे लोगों के साथ भी होता है। अगर आसमान पर ही बादल छाए हुए हों जो दरमियान में हाइल हो, तो वो देख नहीं सकेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि इस्लाम मौजूद नहीं है। अल्लाह ताला मौजूद है, इस्लाम मौजूद है। ये वहाँ है कि उसे छुआ नहीं जा सकता। ये खूबसूरत है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कहते हैं या करते हैं, ये फिर भी मौजूद है। तो इस्लाम को कभी शिकस्त नहीं हुई,
ये अभी भी मौजूद है और मुसलमान हमेशा सच्चे मुसलमानों की तरह जिंदगी बसर नहीं करते। ये हमारी जिम्मेदारी है। मेरे ख्याल में अगर हम सच्चे मुसलमानों की तरह जिंदगी गुजारते तो आप आज भी दुनिया में सबसे ऊपर होते, क्योंकि आखिर एक वक्त में आप दुनिया पर हुक्मरानी करने वाली कौम थे। आपने बहुत से लोगों को सिखाया है, आपने सच्चाई को फैलाया है, लेकिन फिर लोगों के दरमियान इत्तेहाद इत्तेफाक नहीं रहा, जिसके नतीजे में वो हकीकी मुसलमान ना रहे। और फिर बिलाखिर दुनिया तो इसी तरह चलती है। फिर दूसरे लोग आगे आ गए और इसका दारोमदार हम पर है। अगर हम इस्लाम को ऐसे ना समझे जैसे वो है और हम उस पर अमल ना करें तो फिर हमें शिकायत करने का कोई हक नहीं है। लेकिन ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैंने कभी भी यहाँ तक कि जब मैं एक मुस्लिम मुखालिफ सियासतदान था, मैंने कभी इस्लाम को कमजोर नहीं पाया। मैं उस वक्त इसे खतरा समझता था, लेकिन मैं इसको एक खतरा समझने के बावजूद बहुत जरूरी समझता था। लेकिन अब मैं इसे एक सच्चाई के तौर पर देखता हूँ, एक हतमी हकीकी सच्चाई, और ये सबसे खूबसूरत चीज है। लिहाजा आपको इस्लाम से दूर जाने, ये शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं। फख्र करें, इस पर अमल करें, एक हकीकी मुसलमान बने। अगर आप वाकई आखिरत पर यकीन रखते हैं और आप वाकई खालिक पर यकीन रखते हैं तो फिर इस मजहब के लिए सब कुछ करना चाहेंगे, यानी निहायत मुस्बत तरीके से, बिलाशुबा। तो ये वो चीज है जो हमें करनी चाहिए, और अगर आप ऐसा कर लें तो दोबारा बुलंद होंगे। हम जानते हैं कि दुनिया में इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है। आपके ख्याल में हम इस मसले से कैसे निपट सकते हैं? मेरे ख्याल में दो ही तरीके हैं। पहला ये कि एक सच्चे मुसलमान की तरह जिंदगी गुजारें, अच्छे अखलाक का मुजाहरा करें। और क्योंकि शुरू के अक्सर लोग कदीम जमाने में कहा जा सकता है कि उनको जो देखता था वो मुतासिर होता था। मिसाल के तौर पर इंडोनेशिया को देखें, वहां मुसलमान ताजर के तौर पर आते थे और उन्होंने कभी किसी को इस तरह इस्लाम की दावत नहीं दी थी कि दूसरे लोग मुसलमान हो जाएं वगैरह वगैरह। सिर्फ ये कि वो खुद सच्चे मुसलमान थे, वो तजारत करते थे और इंडोनेशियन लोग तब हिंदू होते थे। उन्होंने कहा, वाह ये क्या है, उन लोगों के पास तो एक खूबसूरत तस्वुर है खुदा पर, उनका ईमान वगैरह, वो साफ सुथरे हैं, वो बहुत ईमानदार हैं, ये खूबसूरत चीज है। और उनमें भी उन जैसा बनने की ख्वाहिश पैदा हुई और इस वजह से वो मुसलमान हो गए। वहाँ इस्लाम की कोई बहुत ज्यादा तबलीग नहीं करनी पड़ी, वहाँ लोग सिर्फ इन इब्तदाई मुसलमानों के अखलाक को देखकर ही मुसलमान हो गए जो इंडोनेशिया तजारत के लिए आए थे। और मैं समझता हूँ कि यही बेहतरीन तरीका है। अगर लोग टेलीविजन पर ये सब खौफनाक चीजें देखेंगे तो वो खौफजदा हो ही जाएंगे, या वो इससे नावाकिफ हैं या वो जो भी हैं। और जब वो मुसलमानों का अच्छा अखलाक देखेंगे वो कहेंगे, अरे जो कुछ मैं टीवी पर देखता था वो सच नहीं था, जो मैं मुसलमानों को करते देख रहा हूँ यही इस्लाम है। और बहुत से लोग कुरान नहीं पढ़ते, वो अहादीस नहीं पढ़ते, वो आपको और मुझे पढ़ते हैं। तो आइए एक खुली किताब बने, एक बेहतरीन किताब जो उन्होंने कभी पहले ना पढ़ी हो। मेरे ख्याल में ये बहुत अहम है। और यकीनन दूसरी चीज तालीम है। लोगों को दिखाएं, अगर वो दिलचस्पी रखते हैं और वो मजीद जानना चाहते हैं तो फिर जरूरी है कि अच्छे लोग उन्हें अमली तौर पर दिखाएं कि इस्लाम क्या है, इस्लाम के बुनियादी तसव्वुरात की वजाहत करें। तो मेरे ख्याल में यही दो तरीके हैं। कुछ मुसलमान कहते हैं कि मैं एक ऐसा शख्स हूँ जो घर से काम पर और काम से घर जाता हूँ, या मैं एक तालिब इल्म हूँ। और वो पूछते हैं, मैं अपने इर्द गिर्द लोगों को इस्लाम के बारे में कैसे बताऊं? क्या आपको लगता है कि वो भी इस पैगाम को फैला सकते हैं? जी हाँ, यकीनन तमाम मुसलमानों को चाहिए कि लोगों को इस्लाम की तरफ दावत दें। और अगर मुसलमान लोग भी हों तो आप आपस में एक दूसरे के ईमान में इजाफे का जरिया बन सकते हैं। आप एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं, क्योंकि दुनिया जिसमें हम रहते हैं एक मुश्किल जगह है और यहाँ हमेशा तफरीह नहीं होती, बल्कि बहुत से दुख भी हैं, बहुत से गम भी हैं। लेकिन हमारे सुकून का सामान इस्लाम में मौजूद है। लिहाजा अगर आप लोगों को सुकून पहुंचाते हैं, उनकी मुआवनत करते हैं और उनके ईमान को तकवीयत देते हैं तो ये चीज़ इत्मीनान का बायस बनती है। क्योंकि अगर मेरे पास एक बहुत ही फजूल काम है, मिसाल के तौर पर मुझे सारा दिन मोहरें लगाना पड़ती हैं मेरे साथ एक शख्स काम करता है जो मुसलमान नहीं है, लेकिन उसके कुछ सवालात हैं। आप उससे बात कर सकते हैं और उसका नतीजा अच्छा निकलेगा। दर हकीकत आपकी वहाँ एक मखसूस लम्हे पर, मखसूस वक्त पर मौजूदगी की कोई वजह है, कोई भी यहाँ बगैर किसी वजह के नहीं है। लिहाजा अगर आपको ये एहसास हो कि आपके यहाँ आने का कोई मकसद है, आपको यहाँ अल्लाह ताला के फजल से कुछ करने के लिए भेजा गया है, तो फिर कुछ करें और इस्लाम की खिदमत के लिए कुछ करें। भाई जोराम, आपका इस बेहतरीन और ख़ूबसूरत इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दुआ करता हूँ कि आप आखिरी दम तक इस उम्मत की इसी तरह हमेशा खिदमत करते रहें। आप भी। दूसरी मरतबा हमने आपके पसीने छुड़ाने की कोशिश की है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सके। शायद इसकी वजह ये है कि आप एक सियासतदान हमारे साथ शरीक होने का शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। ये मेरे लिए एजाज की बात थी कि मुझे इस शो में शिरकत का मौका मिला। आप बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह
आप इस्लाम के हकीकी पैगाम को फैलाने में मददगार साबित होंगे और इसे तमाम लोगों तक पहुंचाएंगे, हर किस्म के मुसलमानों तक, स्याह सफेद, बूढ़े जवान, मर्द खवातीन वगैरह सब तक। ये एक बहुत ही अच्छा काम है जो आप कर रहे हैं। अल्लाह ताला बरकत दे।